کے 7 طبقے بنائے ہیں، اور اللہ کے نبی سب سے جو نچلا طبقہ ہے 7واں طبقہ، اس کے اندر اللہ نے منافقین کو ڈالا ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ نے قیامت کے دن سب سے نچلے طبقے میں کس کو ڈالا؟ منافقین کو۔ اور منافقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اوپر سے تو مسلمان دکھے لیکن اندر سے کافر ہو، اندر سے وہ شیطان ہو، اندر سے وہ مردود ہو، جو پیٹھ پیچھے چھوڑا گھونپنے والا ہو، یہ منافقین ہے، جو دور رخ والا انسان ہو۔ فرمایا اس کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور چھٹے طبقے میں اللہ کے نبی مشرقین کو ڈالا جائے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے اللہ فرماتا ہے قرآن کی دوسری آیت میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں جس کو چاہوں مغفرت فرما دوں، لیکن اگر ایک مشرک آدمی توبہ کیے بغیر اگر مرا تو میں اس کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا، سیدھا چھٹے جہنم کے درجے میں پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالی آتش پرستوں کو ڈالیں گے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اللہ ان کو ڈالیں گے۔ اے اللہ کے نبی اس سے 4تھے طبقے میں اللہ کے نبی بت پرستوں کو ڈالیں گے، پھر اس سے 3رے طبقے میں اللہ کے نبی یہودیوں کو ڈالیں گے، اس کے 2 طبقے میں اللہ کے نبی عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ حضرت جبرائیل اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ 6 طبقے کا نام لیا کہ اس میں یہ جائیں گے، اس میں یہودی جائیں گے، اس میں نصرانی جائیں گے، اس میں بت پرست جائیں گے، اس میں مشرک جائیں گے، اس میں منافق جائیں گے۔ جو پہلا طبقہ آیا جبرائیل کی ہونٹ بند، جبرائیل خاموش، جبرائیل پریشان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ یہ پہلے طبقے میں کون آدمی جائے گا؟ ان کا بھی تذکرہ کر دیا جائے۔ فرمایا او میرے محبوب آپ اس کو سن کر کے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو سن کر کے آپ کے اندر بے قراری شروع ہو جائے گی، آپ تڑپ جائیں گے، اس لیے میں اس پر خاموش ہوں۔ فرمایا نہیں جبرائیل مجھے بتاؤ کہ یہ پہلے طبقے میں کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ جو جہنم کا پہلا طبقہ ہے اس کے اندر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ میرے دوستو یہ سننا تھا کہ میرے نبی مچل گئے اور فوراً سجدے میں گر گئے، اور اتنا روئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک بدل گئی، کیفیت بدل گئی، یہاں تک کہ 3 دن تک میرے نبی نے اپنے تمام یاروں سے، اپنے تمام صحابہ سے بولنا تک چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ میرے نبی غم زدہ تھے، 3 دن تک اپنے دروازے، کمرے کے دروازوں کو بند کر دیے، صرف مسجد میں جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور فوراً اپنے حجرے میں آ کر پھر سجدے میں گر جاتے تھے۔ اے میرے مولا میری امت جہنم میں جائے گی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے مولا میری امت جہنم کے سب سے پہلے طبقے میں جائے گی، اے اللہ کسی طرح میری امت کو بچا لیجئے۔ 3 دن ہو گئے، صحابہ پریشان کہ 3 دن تک کسی صحابی سے اللہ کے نبی نے نہ سلام کیا، نہ پیام کیا، نہ اپنی بیویوں کے پاس گئے، نہ اپنے کھانے کی کوئی فکر کی، بھوکے پیاسے 3 دن تک روئے۔ جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے غار یار تھے، جو میرے نبی کے جانثار تھے، میرے نبی کے ایک اشارے پر اپنے ہر چیز کو قربان کرنے والے تھے، تڑپ گئے کہ میرے نبی ایسی کیا ہم سے خطا ہو گئی ہے، ایسی ہم نے کیا غلطی کر لی ہے کہ کسی صحابی سے نہیں ملتے، کسی بیوی سے نہیں ملتے، نہ کھانے کی کوئی فکر ہے، نہ پینے کی کوئی فکر ہے، صرف آتے ہیں نماز کے ٹائم میں نماز پڑھاتے اور سیدھا حجرے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں جاتے ہیں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ او میرے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں ابو بکر حاضر ہوں آپ کے دروازے کے باہر۔
3 मरतबा हजरत अबू बकर चिल्लाते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। हजरत अबू बकर ज़ारो कतार रोते रोते वापस हो जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं, ए उमर, मैंने 3 मरतबा नबी को सलाम किया, कभी आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सलाम का जवाब मेरे नबी न दिए हो। आज मैंने 3 मरतबा सलाम किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ए अबू बकर, ए उमर, जा, कहीं तुझे अगर नबी सलाम का जवाब दे दे तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। जा तू नबी से सलाम करके नबी से इजाजत ले ले कि नबी से क्या परेशानी होगी, हमसे क्या गलती हो गई कि नबी इतने नाराज हो गए, इतने गमज़दा है कि नबी न किसी से बोलते हैं, न खाते हैं, न अपनी बीवियों के पास जाते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, उन्होंने भी कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह के नबी, आपके हुजरे के मुबारक, आपके हुजरे के बाहर में तशरीफ फरमाओ, ए अल्लाह के नबी, मेरे सलाम का जवाब दीजिए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि मैंने भी 3 मरतबा सलाम किया, लेकिन मेरे नबी के हुजरे से कोई जवाब नहीं आया। उमर भी रोते हुए वापस आ गए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, फरमाया, ओ सलमान, तेरे बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि सलमान तो मेरे अहल बैत में से है, मेरा खानदानों में से है। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ तुम नबी को सलाम कर दो, शायद अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जरिए से हमें नबी से बात करने का मौका मिल जाए। जाओ नबी से सलाम करके इजाजत ले लो कि मेरे नबी इतने गमज़दा क्यों हैं, किसी से बातें क्यों नहीं कर रहे। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इसी तरह उन्होंने भी 3 मरतबा सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, ए मेरे नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, ए मेरे नबी, क्या परेशानी है बताओ। अंदर से कोई जवाब नहीं। सहाबा का दिल और ज्यादा धड़कने लगा, सहाबा और बेचैन हो गए कि 3 सहाबी गए, किसी के सलाम का जवाब नहीं। अल्लाह के नबी इतने नाराज कभी नहीं होते थे, अल्लाह के नबी इतने गमज़दा कभी नहीं रहते थे। अल्लाह के नबी तो रहमतुल लिल आलमीन थे, अल्लाह के नबी तो अपने उम्मत पर हर चीज कुर्बान करने वाले थे। आज अल्लाह के नबी अपनी उम्मत से मुंह क्यों मोड़ लिए हैं, इतने गमज़दा क्यों हैं। जब नमाज के लिए आते हैं तो आंखों से ज़ारो कतार आंसू की लड़ियां टपक रही है। क्या बात हो गई, नबी को ऐसी क्या तकलीफ पेश आ गई कि नबी इतने गमज़दा है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक रोते रोते हजरत अली के पास गए, फरमाया, अली, तू नबी का चचाजाद भाई है, दामाद रसूल भी है। नबी ने फरमाया कि अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। जिन्होंने अली को तकलीफ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुँचाई। ए अली, जा, कहीं तेरे जरिए से हमारा मसला हल हो जाए। जाओ नबी से इजाजत ले लो कि मेरे नबी इतने नाराज क्यों है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि अगर मैं गया तो मैं भी चुपचाप खाली हाथ वापस आ जाऊंगा। मेरी सलाम की जवाब भी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे जवाब मिल जाए, मुझे अंदर जाने की इजाजत मिल जाए। चलो मैं कोई दूसरा तरीका इख्तियार करता हूं। मैं वो तरीका इख्तियार करूंगा जो नबी कभी उसको ना नहीं करने वाले। फौरन हजरत अली उस मजलिस से उठे और अपने घर पहुंचे, अपनी बीवी के पास पहुंचे और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर ये पैगाम सुनाया, अरे फातिमा, तुम्हारे अब्बा का आज 3 दिन हो गए, न किसी मजलिस में बैठे हैं, न किसी सहाबी से सलाम कलाम किया है, न अपनी बीवियों के पास गए, किसी से कोई बोलचाल नहीं, सिर्फ आते अपने हुजरे से निकल कर नमाज पढ़ाते, फिर हुजरे में दाखिल हो जाते। खाने तक का भी नबी का पता नहीं कि कुछ खाया भी कि नहीं। अरे फातिमा, तू जा, तू लाडली बेटी है, तेरे बात को कभी इनकार नहीं कर सकती। जाओ तू सलाम जब कह के जवाब ले ले, नबी का क्या परेशानी। चुनांचे मेरे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए आई,
दरवाजा खटखटाई और फरमाया अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, ए मेरे अब्बा जान, मेरे जान माल सब कुछ आप पर कुर्बान हो। अब्बा जान क्या बात हो गई, दरवाजा तो खोल दीजिए। या अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा आई हूं दरवाजे पर, मैं रो रही हूं, तड़प रही हूं कि आप इतने गमज़दा क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं। मेरे दोस्तों, जब मेरे नबी ने सुना कि मैं फातिमा आपके लिए रो रही हूं, तड़प रही हूं, ए अब्बा जान, मैं आपके लिए कुर्बान होने के लिए भी तैयार, आप एक मर्तबा मुझे इजाजत दे दीजिए। चुनांचे बेटी की वो सदाएं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को वापस नहीं कर सके क्योंकि बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, ये तो मेरा जिगर है, जिगर का टुकड़ा है, जिस्म का टुकड़ा है, मेरा कलीजा है। फातिमा वो फातिमा थी। अल्लाह के नबी ने दरवाजे खोल दिए, कहा बेटी अंदर आ जाओ। चुनांचे जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत फातिमा पहुंचती है, देखते मेरे नबी के पूरे चेहरे के अंदर आंसुओं से तर है, दाढ़ी मुबारक से आंसू टपक रहे पानी की तरह। फरमाया अब्बा जान, आप इतना क्यों परेशान है, इतना क्यों रो रहे हैं। कहा कि बेटी क्या कहूं, आज से 3 दिन पहले जिब्राइल मेरे पास आए, जहन्नम के 7 दर्जे अल्लाह ने बनाए, उन 7 दर्जों का जिब्राइल ने मेरे पास तज़किरा किया और तज़किरा करके फरमाया कि जहन्नम के जो सबसे पहला तबका होगा, जहन्नम का जो सबसे पहला खाना होगा, उस पर मेरी उम्मत को दाखिल किया जाएगा। इसलिए बेटी, मैं अपने लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए भी नहीं रो रहा हूं, मैं अपने खानदान वालों के लिए, मैं तो अपनी उम्मत के गुनहगारों के लिए रो रहा हूं कि अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ फरमा दे। ये बात करके हजरत फातिमा फरमाती कि फिर मेरा अब्बा सजदे में चले गए और सजदे में जाकर इतने रोए कि अल्लाह का अर्श हिलने लग गया। फौरन आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओ जिब्राइल जल्दी जाओ, मेरे नबी कहीं अपने आप को हलाक न कर दे, कहीं अपने आप को रोते रोते बर्बाद न कर दे, जाओ मेरे नबी को तसल्ली दे दो, मेरे नबी को खुशखबरी दे दो। और कुरान की एक आयत करीमा लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को भेज दिया। फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा। और जिब्राइल जाओ जल्दी करो, कहीं मेरा नबी रोते रोते अपने आप को बर्बाद न करने, अपने आप को हलाक न कर दे, अपनी जान से हाथ न धो बैठे। जाओ मेरे नबी को खुशखबरी दे दो, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा। ए अल्लाह के नबी खुश हो जाओ, अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुम्हें इतना अता कराऊंगा, इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाएगा और मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा और तेरी उम्मत के एक एक गुनहगारों को जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर मैं पहुंचाने की गारंटी लेता हूं। फरमाया बेटी अब मुझे तसल्ली मिली कि अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया कि अल्लाह क़यामत के दिन मुझसे राजी हो गया और फरमाया कि ए मोहम्मद मैं तुम्हें इतना नेमत से नवाजूंगा कि जब तक तेरा दिल न भर जाए, जब तक तू राजी ना हो जाए, उस वक्त तक मैं तुझे देता रहूंगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मेरे बेटी फातिमा, मैं उस वक्त तक अल्लाह से राजी होने वाला नहीं जब तक कि मेरा एक उम्मती जहन्नम के अंदर रहेगा और वो उम्मती भी जहन्नम से निकल करके जन्नत के अंदर ना चला जाए, उस वक्त तक मैं राजी नहीं होऊंगा। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के लिए 3 दिन रो करके, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके, अपने यारों को छोड़ करके हम गुनहगारों के लिए मांगे थे। आज क्या हम उस गुनहगार